Welcome student to the third topic of our unit number 3. That is, in this video you will see numerical on uniaxial stress system. Uniaxial means in the system having the load only from one direction, the stress produced is known as uniaxial stress system. Learning outcome achieved during this session is calculate change in volume of members for given stress condition. Compute shear stress, shear strain, modulus of elasticity and rigidity and bulk modulus. Course outcome achieved during this session is select material by considering engineering property for various structural application. Program outcome achieved during is PO 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, PSO 1 and 2. Now carefully see the video, and in the last lecture what we had seen, the type of strain, that is linear and lateral, Poisson's ratio, uniaxial, triaxial, biaxial stress system, volumetric strain, bulk modulus, and I had given some assignment. So carefully watch the video numerical of uniaxial stress system. A very good morning student. Welcome to the online learning. Today we will learn unit number 3. You had seen the earlier videos of unit number 3. Now we will stick to numericals of unit number 3, elastic constants. In this, type 1 is numerical based on uniaxial stress system. Uniaxial means the force acting only in one direction. So in this numerical, the important formula is Poisson's ratio denoted by 1 by m, or mu is equals to lateral strain upon linear strain. The mathematically del d by d, d stand for diameter, upon del l by l. If in the question given rectangular section, del b by b upon del l by l, del t by t upon del l by l. Then change in length is equals to del L is equals to PL by E. You know, in the unit number 2 we had learned this formula, del L is equals to PL upon E, where is P is load, L length, A area, E is modulus of elasticity. Volumetric strain is equals to EV is equals to del V by V. So change in volume del V is equals to V bracket E bracket open 1 minus 2 mu bracket close and full bracket close. So what is our first numerical? A mild steel bar is subjected to a load of 80 kilonewton. The diameter of the bar is 16 mm and its length is 320 mm. Calculate elongation if modulus of elasticity is 196 kilonewton per mm square. Calculate change in diameter if Poisson's ratio is 1 by m. So solution. सबसे पहले given data. सबसे पहले क्या रहेगा? Given data. A mild steel bar is subjected to load of 80 kilonewton. P is equals to 80 kilonewton. कन्वर्ट कर दिए न्यूटन में, 10 raised to power 3 न्यूटन. The diameter of the bar is 16 mm. दिया diameter दिया है, D is equals to 16 mm. Length is 320 mm. L दिया हुआ है 320 mm. Calculate elongation if modulus of elasticity denoted by E is equals to 196 kilonewton per mm square, that is 196 into 10 raised to power 3 Newton per mm square. Okay, then Poisson's ratio 1 by m or mu is equals to 0.28. यह ऐसा क्वेश्चन में दिया है. टू फाइंड क्या है? टू फाइंड कैलकुलेट क्या क्या करना है? कैलकुलेट एलोंगेशन del L which is equals to PL by AE. Then change in diameter, that is del D is equals to क्वेश्चन. ये दो चीज हमको फाइंड आउट करना है.
नाउ solution. सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन लेंथ या एलोंगेशन, बोथ आर द सेम वर्ड्स, चेंज इन लेंथ और एलोंगेशन. That is equals to del L is equals to PL upon AE. P हमको दिया हुआ है 80 इंटू 10⁻³ L हमको दिया हुआ है 320 mm. A बॉडी कौन सी है अपनी? डायमीटर दिया है, बॉडी है सर्कुलर बॉडी, π/4 इंटू d². E कितना दिया हुआ है हमको? 196 इंटू 10⁻³ 80 इंटू 10⁻³ इंटू 320 अपॉन π/4 इंटू 16 का स्क्वायर इंटू 196 इंटू 10⁻³. कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करना है मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब तुमको आदत हो चुकी है, हमारा चौथा यूनिट है. तो डेल एल हमारा आया 0.6496 mm. क्या आया ये? डेल एल. सब लोग कैलकुलेट करके 2 मिनट वीडियो पॉज करके पहले कैलकुलेट करेंगे. ओके, देन अब हमको क्या निकालने बोला है? नेक्स्ट अब हमको क्या कैलकुलेट करने बोला है? नेक्स्ट चेंज इन डायामीटर. चेंज इन डायामीटर. चेंज इन डायामीटर डिनोटेड बाय डेल डी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. अब ये हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है पॉइजन्स रेशो म्यू इज इक्वल्स टू होता है लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन. लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन. लैटरल स्ट्रेन मीन्स होता है डेल डी बाई डी, डेल बी बाई बी और डेल टी बाई टी. लीनियर स्ट्रेन मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. अब हम क्या करेंगे? इसमें ये वैल्यू पुटअप करेंगे. तो पॉइजन्स रेशो हमको दिया है 0.28 इज इक्वल्स टू डेल डी हमको कैलकुलेट करना है. डेल डी हमको कैलकुलेट करना है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको डेल डी अपॉन डी इंटू डेल एल अपॉन एल. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? डेल डी. क्या कैलकुलेट करना है? डेल डी. तो डेल डी इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर और सब मैथमेटिकल करके 0.28 इंटू 16, डी क्या है? 16 इंटू डेल एल 0.6496 अपॉन एल दैट इज 320. ये यहाँ के यहाँ ट्रांसफर. ये जो है डेल डी ये इधर आया, ये ऊपर मल्टीप्लाई में गया, नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई में करा, ये डिवाइड में रहा. तो मैथमेटिकल करने के बाद हम लोग पूरा उसको सॉल्व करने के बाद डेल डी हमारा आता है 9.094 इंटू 10⁻³ mm. जैसा तुम्हारा आंसर आएगा उसमें ENG की बटन आप दबाएंगे. तो ये हमारा हो गया डेल डी. डेल एल डेल डी, यही हमारा रिक्वायरमेंट था न्यूमेरिकल का. अब दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे. न्यूमेरिकल नंबर 2 ऑफ टाइप 1 दैट इज यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम. इन दिस न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है? अ मेटल बार 20 mm वाइड, 15 mm thick and 2.8 meter long is subjected to an axial pull of 36 kilonewton. Calculate change in length, width and thickness. Also calculate change in volume of rod. Take E is equals to 1.80 into 10⁵ Newton per mm square. Mu is equals to 0.30. अभी सबसे पहले गिवन डेटा क्या दिया हुआ है?
क्या दिया है, अ मेटल बार 20 mm वाइड, B इज इक्वल्स टू 20 mm, थिक, T इज इक्वल्स टू 15 mm, एंड लेंथ L is equals to 2.8 meter long, that is 2.8 into 10 raised to power 3 mm. Calculate change in length, to find क्या है, change in length del L, change in width del B, change in thickness del T. Also calculate change in volume del V. Take E is equals to 1.80 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एंड म्यू इज इक्वल्स टू 0.30. फिर सॉल्यूशन, फर्स्ट टू कैलकुलेट चेंज इन लेंथ, that is del L is equals to PL upon A. What is P? What is P? Here is given subjected to axial pull of 36 kilonewton. So P is equals to 36 kilonewton, 36 into 10 raised to power 3 Newton. Then what is P? P is 36 into 10 raised to power 3. What is L? L is 2.8 into 10 raised to power 3. What is A? सर्कुलर सेक्शन में A होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पर अभी B और T दिया है, मतलब ये क्या है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, और रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया होता है B इंटू टी, डेट इज 20 इंटू 15. What is E? 1.80 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5. कैलसी पे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 1.866 mm. ये क्या हो गया है, डेल एल. अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन width, that is del B is equals to क्वेश्चन. हमको एक चीज पता है, पॉइजन्स रेशो इज इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन, ये चीज भूलना नहीं है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन. व्हाट इज लेटरल स्ट्रेन? लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल बी बाय बी अपॉन डेल एल अपॉन एल, म्यू इज इक्वल्स टू. देन म्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.30 इज इक्वल्स टू डेल बी अपॉन बी डिवाइडेड बाय डेल एल बाय एल करके देखना आपने. डेल एल आपके पास 1.866 है और एल तुम्हारे पास 2.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 है. ये डेल एल बाय एल में डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो क्या आंसर आता है, 6.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4. अब यहाँ मैथमेटिकली चेंज करने में इजी जाएगा. हमको होना क्या, डेल बी. सो डेल बी इज इक्वल्स टू 0.30 इंटू बी इंटू 6.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4. 0.32 इंटू बी कितना दिया हुआ है, 20 इंटू 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4. तो आंसर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 4.265 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 mm. ये होगा तुम्हारा डेल बी. अब डेल टी और डेल वी बचा हुआ है. नाउ डेल टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, चेंज इन थिकनेस. फिर से ध्यान में रखो, म्यू इज इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन. लेटरल स्ट्रेन डेल टी बाय टी अपॉन डेल एल बाय एल, म्यू इज इक्वल्स टू. देन
डेल एल बाय एल हमको पता है, हमने अब भी नहीं कैलकुलेट करे, म्यू इज इक्वल्स टू डेल टी बाई डी अपॉन 6.66 इंटू 10⁻⁻⁴ हमने अब भी कैलकुलेट करे, सेम स्टेप फॉलो करना है, सिर्फ डेल टी निकालना है। देन डेल टी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू टी इंटू 6.66 इंटू 10⁻⁻⁴। म्यू क्या है 0.30, टी क्या है 15 इंटू 6.66 इंटू 10⁻⁻⁴। डेल टी इज इक्वल्स टू 3.19 इंटू 10⁻⁻³ mm। हमको फाइंड आउट क्या क्या करना था, डेल एल कैलकुलेट कर लिए, डेल बी कैलकुलेट करें, डेल टी हो गया, अब लास्ट बचा हुआ है क्या, डेल वी, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। और मैंने स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में बताया कि डेल वी इज इक्वल्स टू वी ब्रैकेट ओपन ई, फिर से ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 2 म्यू ब्रैकेट क्लोज होल ब्रैकेट क्लोज। वी कितना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम। तो हम सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम क्या यूज करेंगे, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ ब्रैकेट ई 1 माइनस 2 म्यू ब्रैकेट क्लोज। तो नाउ एरिया इंटू लेंथ मीन्स 20 इंटू 15 एल इंटू बी इंटू टी इंटू एल। 20 इंटू 15 इंटू एल कितना है तुम्हारा 2.8 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट ओपन, ई कितना है, ई इज नथिंग बट डेल एल बाय एल, ई क्या था डेल एल बाय एल, 6.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 2 म्यू कितना है 0.32। इन सब को कैलसी में डालेंगे तो आंसर आता है 201.39 mm⁻³ यूनिट पे ध्यान दो, डेल वी का वॉल्यूम का यूनिट होता है mm⁻³ और बाकी सब डायमेंशन का यूनिट होता है mm। एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान में रखो कि E इज इक्वल्स टू डेल एल बाय एल, जो मैंने यहां यूज किया, E इज इक्वल्स टू डेल एल बाय एल, और वही हमने कहा यूज करे, यहां यूज करे। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहले हमने डेल एल कैलकुलेट करे, उसके बाद डेल बी कैलकुलेट करे, देन डेल टी कैलकुलेट करे एंड देन एट लास्ट डेल वी कैलकुलेट करें। यहाँ पे ध्यान में चीज रखने की यही है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ, दैट इज बी इंटू टी इंटू एल, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम। थैंक यू। टाइप 1 अच्छे से पढ़ो, इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व जो मैंने दिया वो अच्छे से करो। थैंक यू। So we have watched the numerical on uniaxial stress system. Try to solve as many as numerical using that technique. Unit outcome we have achieved is calculate change in volume of members for given stress condition, compute shear stress, shear strain and modulus of elasticity and rigidity and bulk modulus. Program outcome achieved during this session is 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 and PSO 1 and 2. In the next video, we will see the numerical on biaxial and triaxial system. Thank you. Keep learning.